Figures give a completely different picture for our state of Andhra Pradesh. There is no mention of a special category status, which we have been demanding from a long time, nor there is any mention about the railway zone, which was promised for AP in the AP Reorganization Act. There is no mention of the steel plant, which is to be set up in Kadapa, or there is any mention of the Petro corridor. Sir, all the things which have been promised in the AP Reorganization Act should be fulfilled by the government, and there is not much happening towards our state. Sir, we would like to know from the government what is that the center is willing to give for Polavaram project, as it has promised to construct Polavaram project completely, and it's a national project. There are conflicting news in the things. Are actually the state government is claiming a different figure, and the central government is saying it's going to give a different figure, which is saying it's 16,000 crores, while the state is claiming it is more than 30,000 crores. We'd like to, Minister, to state what the center is actually going to give for Polavaram project. Sir, the steel plant in Kadapa is very important. We request the government to consider it because it's been a very important thing for Rayalaseema region, where it's going to create employment, and there are conflicting news on railway zone, sir. We have heard that one of the ministers say that railway zone is going to be reality soon, and recently we have heard somebody saying that a committee is going to be put up. The Reorganization Act clearly states that the railway zone will be set up. It doesn't say it might be considered or a committee will be set up. So we want the government to adhere to their promises made, and special category status was promised everywhere, sir, by the India government. It was promised in the public meetings. It was promised in their manifesto. It was promised on the floor of the House. We want the government to give special status for Andhra Pradesh as it has promised. Sir, we have seen the Honorable Prime Minister bow down his head before getting into the Parliament. We expect the same to be followed by the India government in true letter and spirit, and give special status for us. As people say, our parliament is a temple of democracy, and if words given in the parliament floor are not honored, the people's confidence on this institution will be on the wane. Sir, the Honorable Finance Minister presented his fourth budget for the financial year 17-18 with an outlay of 21.47 lakh crores against the revised estimates of 20.14 lakh crores. Sir, this is an increase of only a meager 6.6%, one of the lowest in recent times. If the growth rate in budget expenditure is going to come down to 6.6% against 12.3% of the previous year, how are we going to maintain the 7% growth is my question. And what is even more surprising is that the revenue receipts projected for 2017-18 are projected to grow only by 5.5% over the revised estimates of 2016-17. 5.5% is very low, sir, because the previous year, if you compare 2016-17 and 15-16, it grew by 19%. When revenue receipts are expected at 5.5%, how do you expect the economy to grow at 7% is my question. And should we attribute this to the demonetization which the government undertook recently, or should we attribute this to various other factors? The government or the Honorable Minister should give a clear indication, because nothing was mentioned in the budget as to why the revenue receipts have gone down so steeply. So the capital expenditure of the Union government for the 9-month period of the current fiscal, say from April to December 2016, fell to rupees 1,09,131 crores from 1,15,322 crores. If the capex expenditure is going to come down year on year, how is the GDP going to grow at 7% is my question. Sir, earlier the capex, the projected growth of 17% over revised estimates is the estimation for this current budget. We would like to know what will be the actual capex. And sir, another important issue is the budget expresses an aspiration to double the farmers' income. I would really like to understand how it's going to happen, sir, because if the farmers' income has to double in 5 years, it has to grow year on year 20%. Sir, if you see, after the India has come to power, the MSP for the farmers has been only average of 3%, whereas the inflation is at 5%.
That means it's a negative growth of 2% year on year. The farmers are suffering very badly because of the unprecedented drought and various other floods, everything, sir. Throughout the country, the farmers are in great distress. The MSP, especially for wheat and paddy, has been only 3%. And if you see for cash crops like cotton, the MSP, the average MSP after the India has come to power is only 1%. Sir, how do you expect 20% growth with such low MSP? We demand the government to give the MSP at 10% plus the inflation. Even these figures are not going to be sufficient for a 20% growth for the farmers' income. Sir, I would like to bring to your notice that recently I've seen in the media that India government has announced a loan waiver for Uttar Pradesh. Sir, since the government has got substantial gains because of the fall in crude prices, the government is sitting on cash. I request the central government to consider a loan waiver for all the distressed farmers throughout the country, and we would appreciate it. And we also request to reconsider this MSP because the MSP is very low, and if such is the case and it's going to continue, it's going to kill the farmers completely, sir. The target of rupee 10 lakh crores for agriculture credit for 2017-18 is not even 10% increase, because the fact that total outstanding loans on agriculture and allied sectors was only 9.11 lakh crores as on 25 November 2016. So the 10 lakh crores amount which the government has promised is not sufficient. And even if it comes to budget allocation for agriculture and allied activities, it is 58,663 crores as against 52,821 crores revised estimates for 2016-17. Sir, even this will not be helpful in increasing the income of the farmers to plus 20% levels, so that they're going to double their income in the coming 5 years. The government fixed a target of 2 lakh crores for Mudra Bank funding to unorganized sector. This is a welcome move. We appreciate the government, and government should take steps and see how banks actually perform in this. Sir, next to agriculture, manufacturing sector plays a very important role for our country. Unfortunately, despite laying so much emphasis on Make in India program, there has been a sharp fall in manufacturing sector. This is certainly not good news for us. The index of industrial production published every month by Central Statistical Organization for the all-important manufacturing sector was 183.5 for the month of May 2014. And the same has come down to 181.2 for the month of November 2016, with only intermittent changes in between. This means that virtually the graph has been flat for the past 2.5 years, in spite of so much emphasis on Make in India. The government should rethink its strategy and work out ways to improve the manufacturing sector. Otherwise, we can't expect the economy to grow as the government is projecting. Sir, another worrying factor is the declining trend in gross fixed capital formation and job creation. As per CSO, gross fixed capital formation, a very important measure of investment trend in the economy at constant, 2011-12 prices, is estimated at 35.35 lakh crores in 2016-17 as against 35.41 lakh crores in 2015-16. This is registering a negative growth of minus 0.2%. And the data released by the government on 20th July 2016 shows textiles, leather, metals, automobiles, gems, jewelry, transport, information technology, and the handloom sectors together created just 1,35,000 jobs, sir. This is very less, which is the lowest in the last 7 years. And even the rural wage growth was already zero even before the demonetization come. Sir, conclude. I would like to conclude, but just a thing, sir, I would like to tell. Sir, this is my personal opinion, sir. What is the purpose of government projecting that we are growing at 7%, and what is the purpose of saying that we are controlling the current deficit when the farmers in our country are committing suicides? The government should act and help the farmers, sir. Where the farmers are happy, the government is happy. That's the principle we should understand. And sir, I would like to say that there is only one more budget left for the government, and it's time for the government to make course corrections. Okay. Because especially Andhra Pradesh has been at the receiving end. We have seen how the Congress was at the receiving end for dividing our state. If the promises made on the floor of the House are not kept,
the NDA for sure is going to be at the receiving end, sir. We request and plead with the government to help our state, sir. Thank you very much. श्री धनंजय महादिक जी, आपने मुझे यूनियन बजट 2017 पे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये पहला बजट हो रहा है। देश की जनता को बहुत अपेक्षाएं इस बजट से थी, लेकिन मुझे लगता है ये बजट अप टू द मार्क नहीं था। थोड़ा बहुत मैं सरकार को सराहना चाहूँगा, क्योंकि इस बजट में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हेल्थ पे ध्यान दिया है, मिल्क इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, युवा, महिला, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात बहुत अच्छे से हुई है। साथ ही में जो इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख से 5 लाख का जो इनकम टैक्स भरने का जो मौका था, उसमें 12,500 की राहत भी दी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम ऐसा ये बजट है। क्योंकि अध्यक्ष जी, इसमें और एक बात और कह सकते हैं कि थोड़ा है बहुत की जरूरत है। दुनिया का कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, जो झोपड़े में रहता हो, या कोई अमीर करोड़पति अरबपति हो जो महलों में रहता हो, उसे अध्यक्ष जी दिन में 2 वक्त रोटी की जरूरत होती है। और जो अनाज पैदा करता है वो किसान, थोड़ा सा इस बजट से इसको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष जी, बजट में किसानों को 10 लाख करोड़ ऋण की बात की गई है, घोषणा की गई है। 1 लाख करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन के लिए भी अलॉट किया गया है। कल ही मैंने एक स्टार क्वेश्चन कृषि मंत्री जी से पूछा था, जिसमें हमने ये पूछा था कि देश में 2014 और 2015 में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो जवाब ये मिला है अध्यक्ष जी कि 2014 में 5,650 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि 2015 में ये बढ़ के 8,007 हो चुका है अध्यक्ष जी। मतलब तकरीबन 41% वृद्धि किसानों की आत्महत्याओं में हुई है। और इसका कारण भी दिया गया है कि किसानों का दिवालियापन और ऋणग्रस्तता की वजह से ये आत्महत्याएं हुई है। और महाराष्ट्र में और भी बदतर हालत है, क्योंकि महाराष्ट्र के किसान और ज्यादा संकट में हैं पिछले 2-3 साल की जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से। ऊपर से और 10 लाख करोड़ ऋण की बात इस सरकार ने की है। अध्यक्ष जी, हमको ये समझना होगा कि ये कर्ज की वजह से जो किसान आत्महत्या करते हैं, उन्हें सिर्फ सब्सिडी जो दी जा रही है वो सब्सिडी उनके हाथ में नहीं आती है। क्योंकि आप ये देखिए, फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दी जाती है। माइक्रो इरिगेशन में जो सब्सिडी दी जाती है, जो ड्रिप इरिगेशन होता है, वो उस इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलता है। एमएससीबी का जो लाइट बिल है, उसमें जो उनको कटौती दी जाती है या सब्सिडी दी जाती है, वो भी एमएससीबी को जाती है। मतलब कुल मिला के किसानों के हाथ में इसका कुछ भी फायदा इसको नहीं मिलता है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात हुई अध्यक्ष जी, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस किसका होता है? जो बैंक से लोन लेगा उसका क्रॉप का इंश्योरेंस होगा। मतलब जब भी कोई नैसर्गिक विपदा आती है तो उसका लाभ उस बैंक को होगा। तकरीबन बैंकों को मजबूत करने वाला ये बजट है, ऐसे हमको लगता है। अध्यक्ष जी, नैसर्गिक विपदा की वजह से पिछले 3 सालों से किसान सख्ते में है, परेशान है। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि किसानों को माइक्रो इरिगेशन के लिए 100% सब्सिडी दी जानी चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा, ऐसे मुझे लगता है। जो देश में हमारा क्रॉप यील्ड होता है उसमें सिर्फ 40% हम सक्सेसफुल है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम 100% क्रॉप में सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो एमएसपी की बात मेरे सभी सांसद भाइयों ने इसके बात की है कि एमएसपी की बात कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन आज तक हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे। मिनिमम गारंटी उसके फसल के लिए होना जरूरी है, इस पे भी विचार होने की जरूरत है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा। और अध्यक्ष जी, जो किसान को सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्ट उनको मिलनी चाहिए, ना कि और कंपनियों को मिलनी चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस भी किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने मेहनत से, पसीने से ये सब सिंचाई करता है, तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। शुगर इंडस्ट्री के बारे में और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के बारे में इस बजट में कोई बात नहीं हुई। मैंने जैसे बताया कि पिछले 3 सालों से
शुगर इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सकते में है। हम माननीय मंत्री जी से मिले थे कि शुगर इंडस्ट्री को कोई लोन वेवर हमने नहीं मांगा था, बस जो लोन्स कोऑपरेटिव सेक्टर में है सर, उसको हमने रीशेड्यूल की बात की थी। अभी सभी फैक्ट्रियां तकरीबन 50-60% प्रतिशत फैक्ट्रियां आज बंद है, जो वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पा रही है। एफआरपी का जो बंधन है उसके वजह से बाहर से उन्होंने लोन लिया है और इस वजह से सभी इंडस्ट्री परेशान है। मिल्क इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री दोनों डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत ही तकलीफ में आ चुकी है। तो इसके बारे में भी कोई जरूरत, उसमें कदम उठाने की जरूरत है। तकरीबन अगर किसानों को अगर राहत दिलानी है तो हमको पूरा लोन वेवर, पूरा कर्जा माफ करना, यही एक इस पे सोल्यूशन हो सकता है, ये मैं समझता हूं। अध्यक्ष जी, इसमें और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी आपने गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ की है, जो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है, वो पिछले 2-3 साल से वो भी सभी इंडस्ट्रीज रिसेशन में चल रही है। और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो एमएसएमई की लाइट, जो बिजली उनको लगती है, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। जब अगर हमको इन इंडस्ट्रीज को ऊर्जित अवस्था में लाना है तो इनको इस इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ी बहुत रियायत देनी पड़ेगी, तभी ये इंडस्ट्रीज जिंदा रह पाएंगी। नैसर्गिक विपदा की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कोई देश में नहीं बढ़ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़ रही है, और इसकी वजह से एक परिणाम यह हो रहा है कि जॉब गारंटी बंद हो चुकी है, जॉब क्रिएशन बंद हो चुका है। अध्यक्ष जी, हर साल इस श्रम बाजार में तकरीबन 1 करोड़ नवयुवक, नौजवान इस बाजार में आते हैं नौकरी के लिए, लेकिन सर्वे के अनुसार सिर्फ 1,03,000 लोगों को नौकरी मिलती है, ऐसा यह सर्वे हुआ है। तो उसके बारे में इस बजट में कोई प्रोविजन, बस 2 मिनट लूंगा अध्यक्ष जी, इसके बारे में यह प्रोविजन इसमें नहीं है। अध्यक्ष जी, हाउसिंग में भी थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रोविजन मंत्री जी ने किया है, लेकिन 2-3 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियां जो है उनका टैक्स अभी घटाकर 25% कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या फिर एलएलपी जो है, उनमें भी 25% इनकम टैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी एक ही सेक्टर के अंडर सर आता है। तो इसके बारे में भी आप विचार करेंगे तो ये, जैसे हमको कई सारे लोग इसमें ये इनकम टैक्स सेक्टर में लाना है, तो इसको देखने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन लाइन और डेवलपर्स में भी ये एक बहुत ही अजीब नई सूचना हुई है कि जो किसी बिल्डर ने 50 फ्लैट बांधे हैं, उसमें से अगर वो 25 फ्लैट बेचता है और 25 फ्लैट का वो कंप्लीशन लेता है, तो उसको वो 25 फ्लैट उसने रेंट पे दिए समझ के वो सारे रेंट का टैक्स उस पे लगेगा। तो ये बहुत गलत बात है। जब तक उसकी पूरी फ्लैट्स की बिक्री नहीं होगी तो वो इनकम टैक्स नहीं भर पाएगा। बस आधा मिनट लूंगा अध्यक्ष। तो इसके बारे में आप सोचने की जरूरत है। हाउसिंग लोन और जो सेकेंड होम की जो प्रोविजन थी, जिसपे 2 लाख रुपया इंटरेस्ट में रिबेट मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है। तो कोई आदमी, इंसान अब दूसरा घर लेता है तो उसको भी 2 लाख रुपए का जो पहले जैसा था वैसे ही इंटरेस्ट रिबेट मिलना चाहिए। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा। डिमोनेटाइजेशन की बात हुई, सब ने, हमारे अध्यक्ष पवार साहब ने भी इसकी सराहना की है, हम आपके साथ है। लेकिन इसमें ब्लैक मनी कितना जमा हुआ, इसकी कोई घोषणा आज तक नहीं हो पाई है। हमारा देश बड़ा है, 125 करोड़ लोग यहाँ पे है। ओलंपिक में हमने कोई मेडल नहीं लाया, इसलिए सभी लोग उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल लाने के लिए कोई फैक्ट्री में लोग नहीं बनते। जब वो बच्चा छोटा होता है, 6 साल का होता है, तब से उसको तैयार करने की जरूरत होती है। उसके लिए स्पोर्ट्स में भी कोई प्रोविजन ये बजट में हमको नजर नहीं आ रही है, तो इसमें भी करने की जरूरत है। एमपी लैड्स बढ़ाने की बात सभी सांसदों ने की है, तो उसमें भी वो एमपी लैड भी 25 करोड़ करने की जरूरत है। नए कोई घोषणा, जैसे नए डैम्स, नए कॉलेजेस और नए हॉस्पिटल्स, सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स दिए गए एम्स के गुजरात और झारखंड में, तो नए हॉस्पिटल्स देने की भी जरूरत अध्यक्ष जी है। और ग्रामीण क्षेत्र में एक लास्ट पॉइंट है मेरा अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र में अभी महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव है उनके अंदर जो रोड्स है वो बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, एमपी लोगों को कोई बजट नहीं देता है। तो मैं आपसे डिमांड करूंगा, आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको भी, जहां वहां पे एक 25-15 करके एक स्कीम है, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे गांव में भी रोड्स बनाने के लिए एमपी लोगों को फंड दिया जाए। मैं बस यही इन सब बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
सभापति महोदय, निश्चित ही आज देश की आज़ादी के बाद अब तक बहुत सारे बजट इस देश के व्यवस्था के संचालन के लिए प्रस्तुत किए गए, लेकिन आज जो यह बजट सत्र चल रहा है, इसका अपना एक इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास इस आधार पर भी लिखा जाएगा कि ये जो प्रथा चल रही थी, यह 1924 से लेकर के और 2016 तक एक परंपरा को हम लोग नकल करते हुए चले आ रहे थे। लेकिन इतिहास इसलिए बना कि आज मैं उत्तर प्रदेश से चुन करके आता हूं, और उत्तर प्रदेश के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, यह सौभाग्य है मेरा कि मैं उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस इतिहास के क्षण का साक्षी हूं और ऐतिहासिक बजट का भी साक्षी हूं कि जो बजट विकास के अगर आधार को देखा जाए तो यह बजट हो सकता है हमारे विपक्ष के भाई के लोगों के लिए आईना हो, लेकिन हम विकास के आधार पर देखा जाए तो देश का दर्पण भी है, और इस दर्पण को ऐतिहासिक बनाने का काम हमारे विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय जेटली जी ने किया। बजट का अपना इतिहास रहा है, राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक। अब तक जो भी बजट लाए गए और निश्चित ही, चाहे वह जब राजतंत्र रहा तो प्रजा के खुशहाली के लिए कुछ अच्छे राजा भी हुए जिनका इतिहास आज अमिट है। लोकतंत्र में भी इसी, आज लोकतंत्र में आज जनता का शासन है, जनता के लिए और जनता द्वारा है। उसके आधार पर जब राजा का चुनाव हो रहा है तो उसके आधार पर भी आज यह बजट लाया गया। लेकिन कल चर्चा आ रही थी अध्यक्ष महोदय कि यह सूट बूट की सरकार है, और चर्चा इस पर वह लोग कर रहे थे जो सूटकेस की सरकार चलाते थे। सूटकेस वाले आज सूट बूट की सरकार के मुखिया के ऊपर इसलिए आज कमेंट कस रहे हैं कि आज देश की आजादी के बाद एक गरीब का बेटा अगर इस देश की बागडोर संभालता है, क्या गरीब के बेटे को सूट पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर गरीब का बेटा सूट पहन करके, सभापति महोदय, अगर इस देश के सम्मान को विदेश में बढ़ाता है तो इस पर भी इनको पीड़ा होती है। काश अगर यह चर्चा करते उसी प्रधानमंत्री के और क्रियाकलापों की, कि जिस प्रधानमंत्री ने अपने वेतन को भी खर्च नहीं किया और पूरा का पूरा खर्चा अपने आधार पर, अपने व्यक्तिगत वेतन के आधार पर उठाता है। वह प्रधानमंत्री जो आज पूरी दुनिया में इज्जत के साथ देखा जा रहा है, उस प्रधानमंत्री को आज सूट बूट की बात कही जाती है, सूट बूट की सरकार चलाने का दिया जाता है, इसलिए कि महलों वालों झोपड़ियों को, लोगों को दर्द को क्या जाने। आज उत्तर प्रदेश से मैं चुन करके आता हूं माननीय सभापति महोदय, और उत्तर प्रदेश इस देश की दिशा और दशा का वाहक रहा है। यह उत्तर प्रदेश आज सौभाग्यशाली है कि आज देश को प्रधानमंत्री भी दिया, और पहला भी प्रधानमंत्री दिया था, और आज ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भी दिया। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितनी भी सरकारें आई, अगर देखा जाए आजादी के बाद अधिष्ठाता महोदय, तो सबसे मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की जो देखी जाती है और जो होनी चाहिए। स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही संसार के सभी धर्मों की पूर्ति होती है। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो
स्वस्थ मन से ही हम स्वस्थ कार्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद इस देश में अगर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे अधिक अगर एम्स की स्थापना किसी सरकार ने किया तो या तो अटल जी की सरकार ने किया या तो हमारी वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जिनके नेतृत्व में आज हुआ। अटल जी के भी सरकार में कुल अब तक 11 एम्स बनाए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार में भी अब तक झारखंड में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश से चुन के रख के आता हूं। उत्तर प्रदेश में जो अभी एम्स की स्थापना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करवाई, उस एम्स के स्थापना के आधार पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां एम्स बन रहा है उस एम्स से सटा हुआ बिहार भी है, सटा हुआ नेपाल भी है, और उस आधार पर देखा जाए जो विदेश नीति पर भी कल चर्चा की जा रही थी, तो विदेश नीति की चर्चा के आधार पर सभापति महोदय लगभग 40 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से केवल नेपाल के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एम्स बना गोरखपुर में और जश्न मना नेपाल में, और बिहार भी वहीं से सटा हुआ है। पूरे देश का एक वह पैमाना बना कि 11वां एम्स जो हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे गोरखपुर जनपद में बना। यह विदेश नीति की बात की जाती है। विदेश नीति के आधार पर अगर भी देखा जाए तो विदेश नीति को एक तरह से प्रगाढ़ता देने का काम केवल उत्तर प्रदेश में, जो गोरखपुर में हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी ने करवाया, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। टेक्निकल कॉलेज की बात मैं करना चाहूंगा। टेक्निकल कॉलेज के पहले शिक्षा, स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात मैं करना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय। रोजगार के आधार पर देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश में मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं। गोरखपुर में खाद का कारखाना विगत 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। 20 वर्षों से किसी ने सुध नहीं ली। हमारी जब एनडीए की सरकार थी उस समय उसकी फाइल चली थी, या तो वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी सुध ली, और उसकी सुध ही नहीं लिया अधिष्ठाता महोदय, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करके उसके शिलान्यास की कार्रवाई की, और आज वह संचालन के कगार पर खड़ा है, जिससे अगर बेरोजगारी दूर करने की बात किया जाए तो कुल लगभग 4000 कर्मचारी उसमें समायोजित होंगे, और 4000 कर्मचारियों में से वो गरीब क्षेत्र है, वो पिछड़ा क्षेत्र है अधिष्ठाता महोदय। अगर एक परिवार का एक लड़का अगर वहां नौकरी पाएगा तो 10 लोगों को अपने परिवार में रोटी देगा। अगर उसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 4 लाख अकेले केवल उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग आज लाभान्वित होने जा रहे हैं। आज यह देश का बजट है। पूरे अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो निश्चित ही विपक्ष इसलिए होता है कि आलोचना उनको करना ही है, नहीं तो अगर आलोचना नहीं करेंगे तो कैसे विपक्ष का वह प्रतिरूप यहां पर स्थापित करेंगे। लेकिन अगर स्वस्थ दिमाग से अगर इसकी चर्चा की जाए तो कहीं से भी कोई आधार नहीं बनता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आऊंगा उसके बाद में योजना के आधार पर, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। आज वहां विगत 15 वर्षों से स्थानीय सरकार क्षेत्रीय पार्टी की है, और अभी जो सरकार काम कर रही है क्षेत्रीय पार्टी के, उसके मुखिया को कांग्रेस का भी साथ है, और वह दो लोगों की जोड़ी, युवा मुख्यमंत्री और युवराज की जोड़ी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित है। और बजट की जब बात की जाती है तो अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले कौशल विकास की मैं बात करना चाहूंगा। कौशल विकास जो बेरोजगार नौजवानों के लिए अब तक केवल शिक्षण की व्यवस्था थी और प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, हमारी वर्तमान सरकार ने कौशल विकास योजना के आधार पर शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और उत्तर प्रदेश में एक, जिसमें एक अधिष्ठाता महोदय पूरी बात कह ले दीजिए, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां से चुन करके आता हूं, कम से कम मैं जानकारी देश को देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो दिशा और दशा तय करता था, उस उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी आज वहां के युवाओं के लिए क्या किए। युवाओं की स्थिति यह है, हमारी सरकार ने लगभग 13,000 प्रति युवा का आज समायोजन किया अपने बजट में कि उनको पूरा हम कुशलता
क्या सर्टिफिकेट देंगे? कुशलता का सर्टिफिकेट लेकर के, चाहे वह नाई की दुकान खोलते हैं, चाहे वो मोबाइल की दुकान खोलते हैं, चाहे वह टीवी की दुकान खोलते हैं, चाहे छोटा अपना कोई उद्योग लगाते हैं, उस शिक्षक प्रशिक्षण के आधार पर योजना जो हमारी सरकार चला रही है, मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक योजना के आधार पर अगर देखा जाए तो 50,000 से लेकर के तरुण युवा और शिशु में 50,000, 5 लाख और 10 लाख। अध्यक्षता मतलब बड़ी बात हो जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम युवाओं की सरकार, और यहाँ के अभी जो बैठे हुए लोग हमारे विपक्ष के भाई हैं, उनके युवराज भी साथ में हैं। अभी तो मैं शुरू किया हूँ, अभी तो पूरा अगर आप समय हमको देते तो मैं अभी बताता कि आज क्या पूरा मेरे पास डेटा है, फिर भी युवाओं की बात है। अधिष्ठाता महोदय, इस पर डिस्टर्ब मत करिए, लंबा लिस्ट है। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। अधिष्ठाता महोदय।